تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سندھ کی توڑ پھوڑ کا سوچا بھی نہ جائے۔ وزیر اعلیٰ کی پیش کردہ قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی گئی۔ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی حمایت یافتہ ارکان کی حمایت، ایم کیو ایم کی مخالفت۔ مراد علی شاہ نے دو ٹوک اعلان کیا کہ سندھ کو توڑنے کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کی پیش کردہ قرارداد کثرت رائے سے منظور۔ عاجز جمالی کی رپورٹ۔ کراچی پاکستان کی معاشی شہر کو علیحدہ صوبہ بنانے کی کوشش، آئین کی منافی۔ سندھ اسمبلی میں قرارداد کثرت رائے سے منظور۔ Now I put the resolution to the House. Those who are for the resolution may say ayes. Those who are against it may say no. The ayes have it, and the resolution is... اسپیکر اویس قادر شاہ کی زیر صدارت رواں سیشن کا آخری دن، حکومت اور اپوزیشن ارکان کی دھواں تقاریر۔ ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے، یہ اس دھرتی کی تہذیب ہے۔ آپ کو ریزولوشن لانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ جناب شہر کراچی کا بچہ اور لاڑکانہ کا بچہ دونوں کو اکول کرتے ہیں، کیونکہ آئین پاکستان اجازت دیتا ہے تمام صوبوں میں ملک میں صوبے بن سکتے ہیں، کیوں صرف سندھ میں نہیں بن سکتے، پنجاب میں بن جائے گا؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے سندھ کی تقسیم یا کراچی کو الگ صوبہ بنانے کے خلاف قرارداد پیش کی، جسے کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا، اور بولے سندھ کی تقسیم یا کراچی کو علیحدہ صوبہ بنانے کی کوشش تاریخ آئین اور جمہوری اقدار کی منافی ہے۔ ایسی کوئی بھی کوشش قومی یکجہتی اور وفاقی ڈھانچے کے خلاف خطرہ ہے۔ وفاق تو مضبوط کرنا ہے تو یہ ڈویژنز نہ کرو، اور ادھر بیٹھ کے ہمیں آپ کہہ رہے ہو کہ کہیں کی بو آ رہی ہے۔ شاید 2017 میں فیصلہ انہوں نے سوچے سمجھے طریقے سے نہیں کیا، یہ بو آ رہی ہے مجھے کہ ابھی تک وہ سوچ باقی ہے کسی طریقے سے۔ ریزالو دیٹ دس اسمبلی اسٹینڈز یونائٹڈ بیونڈ پارٹی لائنز۔ اگر کوئی پارٹی نہیں کرنا چاہتی ابھی تک، ٹھیک ہے، فاروق صاحب کو کچھ اعتراضات ہیں، ابھی کہتے ہیں آپ نے سپورٹ کیوں کیا، یہ بتا دیں بھائی، اس پہ کبھی اور بحث کر لیں گے، آج یہ بحث نہیں ہے۔ قائد حزب اختلاف علی خورشیدی نے قرارداد کی مخالفت کی، کہا کہ کراچی کے اضلاع بنا کر سندھ کو توڑا گیا۔ پیپلز پارٹی آج قومی جماعت کی بجائے قوم پرست جماعت لگ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی تو نیشنل بولتی ہے، میں نیشنل پالیٹکس کرتی ہوں، آج ایسا لگ رہا ہے قوم پرست جماعت کے لوگ جو ہیں وہ یہ والی قرارداد لا رہے ہیں۔ سندھ کی انتظامیہ کو بہتر کرنے میں آپ اپنا کردار ادا کریں۔ آپ اس طرح قراردادوں کے پیچھے اپنے آپ کو نہیں چھپا سکتے ہیں، ہم اس قرارداد کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا، گورنر ہاؤس میں منعقدہ تقریب میں سازش کی گئی، جو فارم 47 والے قرارداد کی مخالفت کر رہے ہیں۔ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ بولے، کراچی سندھ کا دل ہے۔ چیف منسٹر صاحب نے جو قرارداد پیش کی اس میں کوئی ایک چیز بتا دیں جو غلط، یا مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے جس طرح ایک دو دوستوں نے تائید کی، کچھ تقاریر یہاں پہ ہوئیں، لیکن انہوں نے یہ کھل کے کہا کہ ہم سندھ کی تقسیم نہیں چاہتے۔ انہوں نے کیا کہا سر؟ انہوں نے بولا کہ جی اگر ہم 47 پہ آئے ہیں تو آپ نے ہم سے صدر کا ووٹ کیوں لیا، اسپیکر کا ووٹ کیوں لیا؟ چل وہ تو الگ بات ہے بھائی، آپ ضرور اسمبلی میں جو ہوگا تو ہم ہر ایک کے پاس جاتے ہیں ووٹ لینے کے لیے، ہم آپ کے پاس بھی آ گئے، لیکن یہ مان لیا کہ فارم 47 پہ آئے۔ اگر یہ فارم 47 پہ نہیں آتے تو یہ اس قرارداد کی ضرور حمایت کرتے۔ قرارداد پر جام خان شورو، سعدیہ جاوید، نجمی عالم، طلحہ احمد، محمد دلاور اور دیگر نے بھی خیالات کا اظہار کیا۔ سندھ اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کی ملتوی کرنے کا اسپیکر اویس قادر شاہ نے گورنر سندھ کو حکم نامہ پڑھ کر سنایا۔ کیمرہ مین محمد حارث کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21۔ دلی میں ایم کیو ایم پاکستان میں گروپ بندی کی گونج۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رکن صدر اسمبلی رانا شوکت نے اپنے ہی رکن قومی اسمبلی اقبال خان پر الزامات اور پھر یو ٹرن۔ اقبال خان کہتے ہیں کہ اگر الزامات درست ثابت ہوئے تو قومی اسمبلی کی سیٹ سے استعفیٰ دے دوں گا۔ رانا شوکت میرے ساتھ 14 فروری کو لیاقت آباد کے جلسے میں موجود تھے۔ انہوں نے پہلے الزام لگایا گھر کا، پھر اس کے بعد انہوں نے الزام لگایا آفس کا۔ دیکھیں، آفس کی اگر وہ بات کر رہے ہیں تو یہاں ان کے پرسنل آفس تو میں گیا نہیں ہوں، نہ ان کے گھر پہ میں گیا ہوں۔ اچھا، جہاں تک ایم کیو ایم کے آفس کی بات ہے تو ایم کیو ایم کے آفس تو ہم اکثر جاتے رہتے ہیں۔ ہمارا جو اپنا یہاں ایم این اے ایم پی اے کا آفس ہے تو وہاں شوکت بھائی بھی آتے ہیں، ہم بھی بیٹھتے ہیں وہاں، ہمارے جو کارکنان ہیں، ہمدرد ہیں، وہاں علاقے کے لوگ آتے ہیں اپنے مسئلے مسائل لے کر، تو اکثر ہم وہاں جاتے رہتے ہیں۔ اس طرح کا کوئی واقعہ میری نظر سے تو گزرا نہیں ہے۔
बहरहाल शौकत भाई अब वो किस वाक़े की बात कर रहे हैं ये शौकत भाई से ही पूछना पड़ेगा। मेरे इल्म में तो इस तरह की कोई बात नहीं है, क्योंकि 14 तारीख का जो लियाकताबाद का जलसा था वो फुटेजेस मौजूद हैं, वो उसकी वीडियो मौजूद है। शौकत भाई स्टेज पर उस जलसे में मेरे साथ ही गए थे और स्टेज पर मेरे साथ मौजूद थे। अच्छा, उसके बाद मुझे समझ नहीं आई कि एकदम 16 या 17 तारीख को शौकत भाई ने ये बयान देना शुरू किया कि मेरा ताल्लुक एक ग्रुप से है और एमकेएम के अंदर कोई धड़ेबंदी है। कोई इस तरह का एमकेएम के अंदर कोई फैक्टर मौजूद नहीं है ग्रुप बंदी का। मेरे चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई हैं और ये है कि पार्टी डिसिप्लिन की जो खिलाफ वर्जी है शौकत भाई ने वो की है, क्योंकि शौकत भाई बेसिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड से इंसान है और बेसिकली वो पॉलिटिक्स से उनका कोई पिछले अदवार में ताल्लुक रहा नहीं है, तो उनसे ये गलती हो गई है, सरजद हो गई है। इस पर उनको जो है वो पार्टी क़यादत से जो है वो मशवरा भी करना चाहिए और माफ़ी। न्यू कराची के फरहाना गवर्नमेंट गर्ल्स एंड बॉयज़ प्राइमरी स्कूल की वीडियो वायरल होने के बाद मरम्मती काम शुरू हो गया, ताहम अब भी स्कूल में बिजली और खिड़कियां मौजूद नहीं। गर्मी में बच्चे तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं, दीवारों का प्लस्तर भी गायब है। तलबा कहते हैं कि स्कूल में बिजली फराहम की जाए। लाइट लगा ले, गर्मी होती है, और पंखा लगा दे, गर्मी हो रही है बहुत, यहाँ पे पंखे भी लगवा दे, लाइट भी और यहाँ का पानी भी। पंखे लगा दो, गर्मी होती है। स्कूल्स बजट की शफाफियत के लिए अहम कदम, ज़िला तालीमी अफसरान की सरबराही में कमेटियां कलअदम। महकमा स्कूल तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक महकमा स्कूल तालीम की बनाई गई डिस्ट्रिक्ट क्लस्टर कमेटियों के हुकूमती फैसले को कलअदम करार देकर कमेटियों के क़याम के नोटिफिकेशन मनसूख कर दिए गए। सिंध के 30 अजला में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान की सरबराही में 19 रुकनी कमेटियाँ बनाई गई थीं। क्लस्टर कमेटियाँ 11 फरवरी 2026 को बनाई गईं। क्लस्टर कमेटियाँ स्कूल को डायरेक्ट जारी बजट खर्च करने की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई। क्लस्टर कमेटी में एजुकेशन अफसरान और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान को शामिल किया गया था। रमज़ानुल मुबारक में शहर क़ायद के मसाइल कम होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में पानी की अदम फराहमी का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया। बफर जोन में पीने के पानी में सीवरेज की आमेज़िश की शिकायत सामने आ रही हैं। अक्सा शेख की रिपोर्ट देखते हैं। रमजान के मुकद्दस महीने में शहरी बुनियादी सहूलतों से महरूम। बफर जोन के मकीन साफ पानी को तरस गए। बफर जोन की लाइनों में सीवरेज के पानी की आमेज़िश का इंकशाफ हुआ है, जिसके बायस घरों में आने वाला पानी बज़ाहिर साफ मगर बदबूदार है। इलाका मकीनों का कहना है कि खस्ता हाल लाइनें और बरसों से अदम मुरम्मत इस मसले की बड़ी वजह है। आलूदा पानी ने सहरी और इफ्तारी की तैयारियों में सबसे बड़ी रुकावट पैदा कर दी है। पानी जो है वो 3 दिन बाद आता है और 3 दिन बाद आ रहा है। तकरीबन ये 22 से 24 दिन हो गए और गटर में लावा पानी आ रहा है। तो ये मुसलसल इन्होंने 18 गड्ढे भी किए हैं मेन रोड पे, लेकिन अभी तक इनको फाइंड आउट नहीं हुआ कि कहाँ से लीकेज है और कहाँ से पानी आ रहा है। जी ये तकरीबन 20 या 22 दिन हो गए हमारे यहाँ और बदबूदार पानी आ रहा है और सीवरेज से लाइन मिल गई है। शायद इससे पहले कभी नहीं हुआ ये इशू, लेकिन जाहिर है उसकी वजह से सारी चीज़ें ही गंदी। हम टैंक नहीं भर सकते, टैंक में पानी जा रहा है। टैंक की सफाई करवाई है हमने 2 बार, ऊपर नीचे, ऊपर की टंकी भी साफ़ करवाई, तो उसके बावजूद अब फिर भर रहे हैं पानी, तो वो फिर उसके बावजूद भी वो साफ़ नहीं आ रहा। बस गुजारा ऐसे ही हो रहा है मैडम कि बस बाहर से बच्चे फ़िल्टर से लेके आ रहे हैं पीने के लिए और बाकी टैंकर डल रहा है। बफर जोन के मकीनों ने मुतल्लिका हुकाम से फौरी नोटिस लेने और पानी की लाइनों की मुरम्मत का मुतालबा किया है। कैमरामैन अमजद के साथ अक्सर शेख, सिटी 21। शहर क़ायद में मसाइल के अंबार, सड़कें तबाह। लांडी 37C में सड़कें कहीं टूट फूट का शिकार तो कहीं सीवरेज की लाइन डालने के बाद तामीर अधूरी छोड़ दी गई। इलाका मकीन कहते हैं कि 1.5 माह से सड़क तबाह है, गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट करेंगे रिमशा इस्माइल। फूटी सड़कें, गड्ढे, धूल मट्टी। लांडी 37C की रिहायशी अजियत से 2-4। शहर क़ायद में इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत ख़राब हो गई। मुख्तलिफ इलाकों की तरह लांडी 37C में भी सड़कें टूट फूट का शिकार। सीवरेज की लाइन बिछाने के बाद सड़क की तामीर नामुकम्मल छोड़ दी गई। 1.5 माह से इलाका मकीन अजियत में मुब्तला।
शाहरा की हालत खराब होने से परेशान इलाका मकीनों का कहना है कि सूरत हाल से न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है बल्कि हादसा का खतरा भी बढ़ गया है। सीवरेज का काम मुकम्मल होने के बाद किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बारिश या पानी जमा होने की सूरत में सूरत हाल मजीद खराब हो जाती है। बच्चों का कभी डंडों में सर लग रहा है, कभी किसमें घर वाले बोल रहे हैं ये क्या कर रहे हैं आप देखते नहीं, तो भाई हम कहाँ तक देखेंगे। इन लोगों ने ऐसा काम करा था, ये 2 दिन में निपटा देते, खोदा था ये डाल दिया था तो बराबर कर देते। अवाम को तसल्ली कराते हैं कि हम काम करें, लेकिन अवाम को कितना परेशान कर देते हैं कि इसका ये अंदाजा नहीं कर सकते। तो इस वजह से ये जल्द से जल्द बनाई है, हमारी जान छुड़वाई है इससे। रिक्शा ड्राइवर का कहना है कि यहाँ से गुजरना मुहाल हो गया है। सड़क पर इतने गड्ढे हैं कि रिक्शा हिचकोले खाता हुआ जाता है। कई बार बच्चे जख्मी हो चुके हैं। गाड़ियों का नुकसान अलग होता है। इलाका मकीनों का मुतालिबा है कि सड़क की असर नौ तामीर कराई जाए। कैमरामैन कयूम के साथ रमशा इस्माइल, सिटी 21। मलिर गुलशन हदीद मोड़ अल्लाह वाली चुरंगी सड़क की तामीर व बहाली मनसूबों का संग बुनियाद। मेयर कराची ने ईद से कबल इलाके में पानी की नई लाइनों की तनसीब की खुशखबरी सुना दी। कहा रवा साल शहर में 55 अरब रुपए खर्च कर रहे हैं। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट। कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होने की उम्मीद। गुलशन हदीद मोड़ ताल्ला वाला चौरंगी सड़क मंसूबों का संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब में मेयर मुर्तजा वहाब बोले, 40 करोड़ की तरक्याती स्कीमों पर काम का आगाज कर दिया। स्टील मिल इंतजामिया की जानिब से तसल्ली बख्श जवाब न मिलने पर वाटर कॉरपोरेशन गुलशन हदीद में पानी की नई लाइनें डालने में मसरूफ है। उम्मीद है ईद से कबल काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। गुलशन हदीद के लिए ये 40 करोड़ रुपए की तरक्याती स्कीम KMC की जानिब से स्टार्ट कर दी गई है। इस स्कीम के तहत सबसे पहले जो यहाँ का नाला है उसकी तामीर की जाएगी और उसके बाद ये जो मेन सड़क है अल्लाह वाली चौरंगी से लेके यहाँ तक इसकी तामीर की जाएगी। जून के पहले हफ्ते में इंशाअल्लाह हम वहाँ वापस आएंगे और इस काम को मुकम्मल करके हदीद की आवाम के हवाले करेंगे। मेयर कराची ने TP1 ट्रीटमेंट प्लांट हारून आबाद को ऑपरेशनल करने का दावा किया और बोले, मंसूबे की लैब रिपोर्टिंग मस्बत आई है। अब हम मीठे पानी को बचाएंगे, रिसाइकलिंग पानी को सनती इस्तेमाल में लाएंगे। हमने उस ट्रीटमेंट प्लांट को एक्चुअलाइज कर दिया, ऑपरेशनल बना दिया है और अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान का पहला सनती पानी यानी कि सीवरेज के पानी को ट्रीट करके सनती इस्तेमाल के लिए बरूए कार बनाने का सिलसिला हमने उस जगह पे स्टार्ट किया। तो इंशाअल्लाह आइंदा चंद रोज में उसकी कमर्शियल ऑपरेशन को हम स्टार्ट कर देंगे ताकि मीठे पानी को हम शहरियों के लिए बचा सके। मुर्तजा वहाब ने मुखालफिन को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि गवर्नर हाउस भी सिंध के दिए हुए पैसों से चलता है, लिहाजा लिसानी सियासत ने इस शहर को बुरी तरह नुकसान पहुँचाया है। अब बस किया जाए। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। रमज़ानुल मुबारक भी इंतजामिया को ख्वाब गफलत से नहीं जगा सका। ज़िला वस्ती की UC 140 के मकीनों के लिए गैस मसाइल आजमाइश बन गए। सहर अफ्तार के वक्त गैस के कम प्रेशर से मकीन जहनी अजियत का शिकार है। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। जिला वस्ती की UC 140 में रमज़ान मुबारक के दौरान भी गैस बहरान बरकरार। सहरी और इफ्तारी जैसे अहम औकात में गैस की शदीद किल्लत ने शहरियों को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया। इलाका मकीनों का कहना है कि रमज़ान में रिलीफ के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन अमली तौर पर UC 140 के मकीन मुश्किलात से दो चार हैं। सहर और इफ्तार में गैस प्रेशर न होने के बराबर होता है, जिसके बायस ख़वातीन को सहरी और इफ्तारी की तैयारी में शदीद मुश्किलात का सामना है। गैस के मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। सहरी के वक्त जब गैस का सप्लाई का कहा जाता है, लेकिन गैस सप्लाई नहीं दी जाती है और अक्सर यही होता है कि गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही होती और हमें फिर ज़ायबत सहरी के बनाने के लिए ख़वातीन को सिलेंडर यूज़ करना पड़ता है, जो कि एक एडिशनल कॉस्ट है और रिस्क भी है। लेकिन अब तक ऐलानात के बावजूद कोई इस औकात में गैस की सप्लाई बिल्कुल भी नहीं होती। गैस का बहुत प्रॉब्लम है, गैस सही नहीं आता, ना दिन में आता ना रात में आता। सहरी में परेशानी होती है, अफ्तार बनाने में परेशानी होती है, हर मामले में गैस की प्रॉब्लम बहुत है। इलाका मकीनों ने मुतल्लिका हुकाम से फौरी नोटिस लेने और गैस की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अमजद अली के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। लांढी मुस्तफ़ा मस्जिद के करीब वाक़ गोदाम में अचानक आग लग गई। आग ने देखते ही देखते शिद्दत इख्तियार कर ली। रेस्क्यू 1122 के 2 फायर टेंडर्स ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग लगने से गोदाम में रखा गया लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। तुरेश शहवार की रिपोर्ट।
टांडी मुस्तफ़ा मस्जिद के करीब वाक़े गत्ते के गोदाम में अचानक आग लगने का वाक़या पेश आया, जिसने देखते ही देखते शिद्दत इख्तियार कर ली। गोदाम मालिक का कहना है कि ज़ोहर की नमाज अदा करने गए थे, जब वापस आए तो गोदाम में आग लगी हुई थी। अहले इलाका ने बहुत मदद की, मगर इलाके में पानी की शदीद किल्लत है। गोदाम में तकरीबन 8 लाख रुपए की मालियत का सामान पड़ा था। रेस्क्यू 1112 को इतला दी, वो थोड़ी ताखीर से पहुंचे क्योंकि यहाँ गलियाँ तंग हैं। रिक्शा वाले हमने फ़ोन कर दिया, वो लेकिन वो आए गए थे, ये टाइम से आए थे, ये नहीं कि टाइम से नहीं आए थे। लेकिन मेन मसला हमारी गलियों का इशू है। गलियों में अंदर वहाँ शेरपाव से लेकर यहाँ तक गाड़ियाँ आई, रिक्शा वाले यहाँ पर खड़े हुए थे, ये नहीं कि नहीं खड़े हुए थे, लेकिन हमारे पास गाड़ियाँ नहीं पहुँच सकती थी। कम से कम हमारा यहाँ पर जो कम से कम 8 लाख रुपए का जो गत्ता पड़ा हुआ था वो तो जल गया। इलाका मकीन का कहना है कि घर में सो रहे थे कि अचानक शोर की आवाज़ आई। बाहर निकले तो देखा गोदाम में आग लगी हुई थी। अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने की कोशिश की, मगर आग बहुत ज्यादा थी। हम लोग सोए हुए थे, जब देखा भाई लोड की जल रही है, आग लगा हुआ है, धुआं लग रहा है। हम आगे देखा गोदाम में काफ़ी तादाद से आग लगा है। तकरीबन मतलब सारे इलाके वाले ने बहुत कोशिश की है, उसके बावजूद जो है आग थोड़ी सी कम हुई है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बर्वक्त कार्रवाई के बायस आग को करीबी इमारतों तक फैलने से रोक लिया गया। कैमरामैन नवेद के साथ दुरे शहवार, सिटी 21। एक हफ्ते में स्टॉक मार्केट में बड़ी मंदी, बेंचमार्क 100 इंडेक्स लड़खड़ा गया, सरमायाकारों के होश उड़ गए। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स 6439 पॉइंट्स की बड़ी कमी से 1,73,169 की सतह पर बंद हुआ। शेयर्स की कीमत कम होने से एक हफ्ते में सरमायाकारों को 757 अरब रुपए का नुकसान हुआ। अशरफ खान की रिपोर्ट। स्टॉक मार्केट एक हफ्ते में शदीद गिरावट का शिकार, बेंचमार्क 100 इंडेक्स पर लर्जा तारी, सरमायाकारों के आसान खता। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 6,439 पॉइंट्स की बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स 3.6% कमी से 1,73,169 की सतह पर बंद हुआ। मुसलसल गैर मुल्की कॉरपोरेट फरोख्त ने मार्केट पर दबाव बरकरार रखा। जुमेरात 19 फरवरी को एक दिन में 100 इंडेक्स 6,683 पॉइंट्स की तारीखी कमी रिकॉर्ड की गई। इससे पहले 8 मई 2025 को 100 इंडेक्स में एक दिन में 6,482 पॉइंट्स की मंदी हुई थी। इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 1,79,696 और कम तरीन सतह 1,69,592 रही। स्टॉक माहिरीन का कहना है कि जियो पॉलिटिकल सूरत हाल मार्केट में मंदी की वजह है। हफ्ता भर कॉर्पोरेट सेक्टर की जानिब से फरोख का दबाव रहा। पूरा हफ्ता ही तकरीबन मंदी चली है, मार्केट प्लस ही नहीं आई। आज थोड़ा सा ये है कि मार्केट ने थोड़ा सा टर्न लिया और मार्केट अपने पॉजिटिव पॉइंट पे आई है। इसकी वजह है कि एक तो मार्केट अपने टॉप से बिल्कुल नीचे आ गई थी और आज भी बिल्कुल तकरीबन 20,000 पॉइंट जैसे आपने देखा होगा मार्केट अपने टॉप से नीचे थी, तो आज थोड़ी सी रिकवरी आई है। दूसरा ये जियोपॉलिटिकल हालत के हिसाब से भी मार्केट जो है वो मंदी का शिकार रही पूरा हफ्ता। जी बिल्कुल, ये हफ्ता जो है मार्केट के लिए बहुत ही वॉलेटाइल रहा। आपने देखा कि इंडेक्स का एक मौके पे तकरीबन 7,000 पॉइंट की जो मंदी हुई है, जो एक साल की सबसे बड़ी मंदी है। और आपने देखा इसकी जो वजह है म्यूचुअल फंड और दीगर इदारों की तरफ से सेलिंग थी और जो है प्रॉफिट टेकिंग भी थी। और इसके साथ साथ जो यूएस और ईरान में जो कशीदगी हुई है उसका भी मार्केट पे इम्पैक्ट आया। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 187 अरब रुपए मालियत के 3.26 अरब शेयर्स का कारोबार किया गया। एक हफ्ते में शेयर्स की कीमत कम होने से सरमायाकारों को 757 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। सूरत हाल से एक हफ्ते में मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,359 अरब से घटकर 19,602 अरब तक गिर गई। अशरफ खान, सिटी 21। एक हफ्ते के दौरान पाकिस्तानी रुपए की कदर में बेहतरी देखी गई। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 6 पैसे सस्ता होकर 279 रुपए 56 पैसे पर बंद हुआ। ओपन एक्सचेंज मार्केट में भी बड़ी करेंसियों की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। अशरफ खान की रिपोर्ट। करेंसी मार्केट में मुस्बत पेशरफ्त आ गई, बड़ी करेंसियां दबाव में, लेकिन रुपए को सहारा मिल गया। इंटरबैंक ओपन एक्सचेंज मार्केट की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी गई। एक हफ्ते के दौरान इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 6 पैसे सस्ता होकर 279 रुपए 56 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 4 पैसे कमी के बाद 280 रुपए 62 पैसे का हो गया। इसके अलावा यूरो 2 रुपए 77 पैसे सस्ता होकर 331 रुपए 90 पैसे और बरतानी पाउंड भी 5 रुपए 5 पैसे कमी के बाद 380 रुपए की सतह तक गिर गया। हफ्ते के दौरान यूएई दिरहम 2 पैसे कमी के बाद 77 रुपए 19 पैसे का हो गया, जबकि सऊदी रियाल 2 पैसे इजाफे के साथ 75 रुपए 34 पैसे पर पहुंच गया। माहिरीन के मुताबिक रुपए की कदर में बेहतरी की एक बड़ी वजह स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा है। दूसरी जानिब एक हफ्ते के दौरान स्टेट बैंक के ज़खायर में 1 करोड़ 91 लाख डॉलर का इजाफा हुआ, जिसके बाद ज़खायर 16 अरब 19 करोड़ डॉलर से तजावज़ कर गए। अशरफ खान, सिटी 21। तिजारती खसारे में इजाफे पर सनतकारों ने इक़दाम करने पर जोर दिया है। ऑल पाकिस्तान कॉटन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के
चेयरमैन अफीफ सिद्दीकी ने कहा है कि गैर ज़रूरी अशिया की दरामदाद में इजाफा माहाना $6 अरब का बिल बढ़ा रहा है। हुकूमत तरसीलात ज़र से हासिल डॉलर्स को कर्ज की अदायगी पर खर्च करे। मजीद क्या कहा ये जानते हैं। पर डॉलर्स की कमी थी, बैंक एलसीज नहीं खोल लेते, हमारी पाकिस्तान की रेटिंग नीचे जाती जा रही थी और सब डिफॉल्ट की आवाज़ें उठा रहे थे। उसका मेन ही रीज़न ये था कि हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत बड़ा था और हम दोबारा उसी डगर पे चल रहे हैं कि हम बगैर सोचे समझे हर चीज़ की इंपोर्ट कर रहे हैं। हम हर चीज़ को इंपोर्ट खोली हुई है। हमें ये समझना पड़ेगा कि फॉर द नेक्स्ट 5 years हमें रिस्ट्रिक्शन चाहिए कि लग्जरी आइटम्स और नॉन एसेंशियल आइटम्स इंपोर्ट नहीं करने पाकिस्तान ने। आप उसके ऊपर चाहे ड्यूटी स्ट्रक्चर इतना बढ़ा देंगे वो फीजिबल ना रहे, आप उसके ऊपर जो है वो एलसीज खोलने के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाएं, लेकिन आपको कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। हम रॉ मटेरियल्स और एसेंशियल आइटम्स को इंपोर्ट करें, बाकी लग्जरी आइटम्स की इंपोर्ट को बिल्कुल रोक। एक्सपोर्टिंग कल्चर बनाना होगा, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट लानी पड़ेगी पाकिस्तान के अंदर। और जैसे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने पहली दफा किसी फाइनेंस मिनिस्टर ने जो है वो एक्नॉलेज किया कि हमारी टैक्सेशन और हमारी यूटिलिटी की जो कॉस्ट है वो हमारी एक्सपोर्ट को जो है हिंडर कर रही है, तो ये एक बड़ा अच्छा स्टेप ये है कि कम से कम एक्नॉलेज किया गया कि ये प्रॉब्लम है हमारी। लेकिन हमें साथ साथ ये भी समझना पड़ेगा कि हमें डेट सर्विसिंग में बहुत सारा पैसा IMF को भी वापस करना है, चाइना को भी वापस करना है, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को भी वापस करना है। तो जो हमारे पास फॉरेन रेमिटेंस आ रही है, हम वो फॉरेन रेमिटेंस को बचाएं कि हम उससे अपनी कर्जे माफ करवाएं, यानी कि हम जो है वो इंपोर्ट की और एक्सपोर्ट की डेफिसिट को पूरा करते रहें। इस तरह तो हमारे जो कर्जे हैं वो वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। माह सयाम में शहरियों की सहूलत के लिए नादरा मेगा सेंटर्स के औकातकार तब्दील कर दिए गए। सुबह 7:30 बजे से शाम 5 बजे और रात 9:30 बजे से सुबह 3 बजे तक शहरी शनाख्ती कार्ड और इससे मुतल्लिक दीगर दस्तावेजात बनवा सकते हैं। खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट। नादरा मेगा सेंटर 5 स्टार चौरंगी में रमजान मुबारक के दौरान औकातकार तब्दील कर दिए गए। माह रमजान में सुबह 7:30 बजे से शाम 5 बजे तक मेगा सेंटर खुले रहेंगे। नमाज तरावी के बाद 9:30 बजे से रात 3 बजे तक शहरी अपने शनाख्ती कार्ड बनवाने, तजदीद, बेफॉर्म और इससे मुतालिक दस्तावेजात के लिए आ सकते हैं। 5 स्टार मेगा सेंटर में 24 काउंटर शहरियों को सहूलियात मुहैया कर रहे हैं। शहरी कहते हैं अब लंबी लंबी कतारों से जान छूट गई। मुंतज़मीन ने आवाम के लिए बेहतरीन सहूलत मुतारिफ करवाई, वो है पाक ID। हुकूमत मुबारकबाद की मुस्तहिक है। डिजिटलाइजेशन की वजह से काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है और काफ़ी बेहतर हो गया है। लाइन वगैरह आप देखें, यहाँ पे रश भी अब उस तरह से नहीं है, जल्दी जल्दी नंबर आ रहा है। मुझे ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने CNIC कराना था रिन्यू, तो उसका पूरा एक्सपीरियंस जो है मेरा 15 मिनट का हार्डली हुआ है। पेमेंट भी ऑनलाइन हो रही है, वो आपको दे रहे हैं, एक कोड दे रहे हैं, उस पर आप पेमेंट कर रहे हैं और 2 काउंटर पे काम करने और काउंटर बहुत तेज़ी से कर रहे हैं काम, तो ज़बरदस्त। गवर्नमेंट बहुत अच्छा इसमें काम कर रही है, चीज़ें बहुत फास्ट ट्रैक पे आ गई हैं। अभी टोटल हमने रिन्यूअल कराने थे 2 NIC इन्फॉर्मेशन वगैरह, टोटल 15 मिनट हमें लगा और सारा काम हो गया। जुम्मे को खिदमात का वक्त सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक मुकर्रर किया गया है। कैमरामैन अजलान छिपा के हमरा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी,